अंडाल से लाखों रुपए छीनकर भागते समय अंडाल पुलिस ने आसनसोल के कन्यापुर के पास से 2 डकैतों वाहन सहित दबोच लिया। दोनों से पूछताछ के बाद 2 और अपराधियों का नाम सामने आया है। सोमवार की रात से ही पुलिस पकड़ने के लिए छापामारी कर रही है। जामड़िया के श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड कंपनी के सिविल ठेकेदार पार्टनर अरूप चैटर्जी ने अपने कर्मचारियों के माध्यम से कंपनी को पैसा भेज रहे थे। दोनों दुर्गापुर से मोटरसाइकिल से जा रहे थे। यह पैसा सिविल ठेकेदार के ठेका कर्मियों को देना था। बैग में कुल 4,52,000 रुपए थे। दुर्गापुर से जामुड़िया कंपनी के कर्मचारियों तक पैसा पहुंचाना था, लेकिन बीच में ही अंडाल के पास छिनताई की घटना हो गई। कर्मचारियों ने तत्काल घटना की सूचना मालिक को दी। मालिक ने घटना की सूचना अंडाल पुलिस को दी। अंडाल पुलिस ने मामले की जानकारी आसनसोल पुलिस को दी, लेकिन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाका चेकिंग की और अंडाल पुलिस भी पीछा करते हुए कन्यापुर पहुंची और आखिरकार आसनसोल के कन्यापुर क्षेत्र से 2 अपराधियों को पकड़ लिया गया। ये বাংলাতে আনুমানিক 3:30টার সময় আমরা খবর পেলাম। আমরা ওসি अंडाल এটা খবর পেলাম যে একটা ছিনতাই ঘটনা ঘটেছে রাস্তা উপরে এনএচ উপরে। তো বেসরকারি কোম্পানির দুজন বাইকে করে যাচ্ছিল। তার কাছ থেকে মোটামুটি 4 লাখ টাকা গাড়িতে করে 4 জন এসেছিল। ইকো স্পোর্ট গাড়ি ছিল, এটা করে ছিনতাই করে পালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুরো টিমকে অ্যাক্টিভেট করলাম। নাকা চেকিংটা শুরু করা হলো। दूसरा जोन जो আছে আসানসোল ওই সব থেকে খবর দেওয়া হলো। আর পিছনে আন্ডাল থানার পুলিশও চেজ করতে শুরু করলো। চেজ করতে করতে দেখা গেল ওরা আসানসোল দিকে যাচ্ছে। আসানসোলকে আমরা খবর দিলাম, নাকা লাগালো। নাকা লাগিয়ে দেখা গেল ওরা নাকা ব্যারিকেড যেটা আছে সেটা ইকো স্পোর্ট গাড়ি ওটা ভেঙে চলে যাচ্ছে। এবারে আমাদের সন্দেহ আরও হলো কি ওই গাড়িটাই আছে। তারপরে আমরা ফার্দার বারাবানি সাইডে নাকা লাগিয়ে ওদেরকে ধরলাম। ধরে দুজনকে সঙ্গে থেকে ওরা গাড়িতে ছিল অ্যারেস্ট করা হলো। কাছ থেকে টাকা পাওয়া গেছিলো, একটা ডামি আর্মস পাওয়া গেছিলো। আর্মস ছিল মানে কী আছে কিনা সেটা আমরা দেখে নেবো। আর্মস ছিল তো ওটা পাওয়া গেছে। তারপরে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে দেখা গেল কি ওর যে প্ল্যানিং করেছিল যে রিয়েল টেক কোম্পানি ওরই একটা কর্মচারী এটা খাবার দিল, ওরা টেপার হিসাবে কাজ করে। তাকে আমরা ধরতে পেরেছি। ওরাও কনফেস করলো কি হ্যাঁ ওরাই এই প্ল্যানিংটা করেছিল। প্ল্যানিং করে একটা লোক আছে কালু নাম, ওর সাথে ওটা প্ল্যানিং করেছিল। তো যাদেরকে ধরেছি আমরা দুজন আছে ওর মধ্যে বারাবনি মদনপুর এলো, একজন আছে রানীগঞ্জে নিমচার লোক, আর একটা তো ম্যানেজার যে আছে যে কর্মচারী আছে। তো খুব কম সময়ের মধ্যে মানে মোটামুটি আপনি 1.5 ঘন্টার মধ্যে আমরা এত বড় ডাকাতি কাণ্ডটাকে ডিটেকশন করতে ফেলেছি। আমরা কোঅর্ডিনেটেড এফার্ট ছিল, স্পেশালি থানা যেভাবে ত্বরিতভাবে অ্যাকশন রেসপন্স করলো ওটার জন্য আমার মনে হচ্ছে এটা একটু তাড়াতাড়ি ডিটেকশন আমরা করতে পেরেছি। স্যার কজন ছিল স্যার? 5 থেকে 6 জন ছিল। তো এখন অবধি আমরা 3 জনকে আর একজন আর 3 জনকে আমরা এখন অবধি করতে পেরেছি। আর্মস কটা পাওয়া গেছে? আর্মস একটা। পরপর থানার যে সাফল্য স্যার কি বলবেন স্যার? পরপর এই ধরনের রেসপন্স টাইমটা আমাদের কমেছে, মানে রেসপন্স টাইম যখন কম থাকে তো টিমটাকে অ্যাক্টিভেট করা হয়। আর রেসপন্স টাইম কম ছিল এই জন্য একটা ধরতে পেরেছি, এটা আমার মনে হচ্ছে। থ্যাংক ইউ স্যার। रानीगंज के नीमचा निवासी विकास सिंह, रंजीत बावरी और दिल मोहम्मद मुल्ला दोनों जामुड़िया के बाराबनी और जामुड़िया के चिरुलिया निवासी राजू काजी रहने वाले बताए जा रहे हैं। आसनसोल पुलिस ने सोमवार रात अपराधियों को अंडाल थाने को सौंप दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार सुबह आरोपी को दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पुलिस आरोपी को 14 दिनों की पुलिस हिरासत के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन कर सकती है। কিভাবে ইনফরমেশন পেলেন এবং পুলিশ কিভাবে আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে? প্র্যাকটিক্যালি আজকে আমাদের কিছু লেবার পেমেন্ট ছিল স্যামসেল পাওয়ার লিমিটেডে। ওখানে আমরা অ্যাজ এ সিভিল কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করি, আমরা 2 জন পার্টনার। তো তাদের কিছু ব্যালেন্স পেমেন্ট ছিল, সেই পেমেন্টটা আমরা ব্যাংকে আজ সকালে তুলে আমাদের 2 জন স্টাফকে দিয়ে 2 হুইলারে করে আমরা পাঠাচ্ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত অন্ডাল ব্রিজের ওপরে একটা 4 চাকা গাড়ি তাদেরকে আস্তে আস্তে সাইডে আটকে দেয়। আটকে দিয়ে তাদের কাছ থেকে তাদেরকে একটা চেম্বার বা গান কিছু শো করে, ওই ব্যাগটা ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে ফোন করা হয় এবং 100 ডায়ালকেও আমার যে ছেলেটি স্টাফ ছিল সে 100 ডায়ালকেও কল করে। তো আমরা আসি, এসে
আমাদের এই অন্ডাল না আমরা ওখান থেকে থানা ডাইরেক্ট ফোন করেছি। ফোন করেছিলাম। আমরা এখানে এসে রিপোর্ট করি। রিপোর্ট করার পরে ওনারা অ্যাকশন নিয়েছেন এবং আমরা বলছেন যে এটা ক্লিয়ার আউট হয়ে যাবে। পুলিশের এই সাফল্য বলবেন? আমরা গর্বিত, আমরা বিশেষভাবে গর্বিত যে দুর্গাপুরের একজন বাসিন্দা হয়ে যে আমি এই সাপোর্ট ওনাদের কাছ থেকে পেয়েছি। আমি এত তাড়াতাড়ির মধ্যে রিকভারি হয়েছে, কি হয়েছে নাও জানি না, বাট আমাদের কাছে একটা পজিটিভ, আমরা যে ওনাদের কাছ থেকে সাপোর্ট পেলাম বিশালভাবে, যেটা আমরা দুর্গাপুরবাসী হিসাবে স্যার অ্যাপ্রক্সিমেট 4,52,000 জায়গাতে চুরি হয়েছে আপনার? চুরি হয়েছে অন্ডাল যে ব্রিজটা আছে সেই ব্রিজের জাস্ট মিডল পোর্শনে। বলছি আপনাদের এই যে পয়সাটা চুরি হলো, আপনাদের কোম্পানির মধ্যে কোনো লোক ছিল কি জড়িত? কোম্পানির মধ্যে লোক ছিল কিনা এখন বলতে পারবো না, এখন আমাদের কিছু জানি না এখনো পর্যন্ত। তবে আমাদের এখন স্টাফরা, আমার যে অফিস স্টাফরা আছে, অফিস স্টাফরা সব এসছে এখানে, তাদের মধ্যে কোনো প্রবলেম কিছু নেই। আমার নাম অরূপ চ্যাটার্জি, পার্টনার অফ রিয়েল টেক। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर 34 नंबर वार्ड भाजपा प्रत्याशी आनंद कुमार साव ने अपने कई इलाकों जैसे डॉक्टर कॉलोनी, मूचीपाड़ा, कोड़ापाड़ा, गौरंगडांगा और हुचुकपाड़ा में चुनाव प्रचार किया। वहीं हुचुकपाड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान वहां के लोगों ने उन्हें इलाके की कई परेशानियों से अवगत कराया। वहां के टूटे फूटे जर्जर पड़े सड़क की अवस्था दिखाई, बदहाल अवस्था में टूटे हुए नाली को दिखाया, जिसके ऊपर गंदा पानी हर वक्त बहता रहता है, जो उन्हें काफी परेशान करता है। और भी कई परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। और आगे उन्होंने कहा कि हर बार चुनाव प्रचार करने के लिए कई प्रार्थी आते हैं और बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि इस इलाके की समस्या का वे लोग निदान करेंगे, मगर चुनाव खत्म होते ही वे अपने वादे भूल जाते हैं। তালাব পুকুর এই নালাগুলো সব করাতে হবে, আর উন্নয়ন কে করবে আপনারাও ভালোভাবে বুঝে বাস আশীর্বাদ করুন, তাই আমরা জিতে এই কাজগুলো করে দেবো। এটা কাজগুলো করে দেবো। এই মানুষ এভাবে থাকছে, আমরা দেখে আমরা নিজে লজ্জিত হয়ে যাচ্ছি কিভাবে কি কাজ হচ্ছে এখানে। इलाके वासियों ने आनंद साव के समक्ष विरोध जताते हुए निराशा जाहिर की। वहीं भाजपा प्रार्थी ने इलाके वासियों से वादा किया कि अगर आप मुझे इस चुनाव में जीत दिलाते हैं तो मैं सबसे पहले इस इलाके की समस्या को दूर करूंगा। जैसे कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है स्वच्छ भारत अभियान, और मैं उसे पूरा करते हुए इलाके को स्वच्छ बना दूंगा। बस आप इस चुनाव में मुझे जीत दिलाएं। चुनाव प्रचार के दौरान सभापति सिंह, संदीप गोप, सागर राय, तुहिन मान्ना, उदय सिंह, पिंटू तरबे और अभीक मंडल मुख्य रूप से मौजूद रहे। नहीं, लिखे वाला बोला है हमारा ऑर्डर नहीं मिला। बहुत गांव बैठा है, की करिए, कहाँ दिए बाबू बैठे बैठे अभी आता है, अभी इसी का अभी समय है आप लोग को बदलाने का। नहीं सुना है बाबू, 3 में हमनी सुनबो, हमनी के वोट दिए 12 तारीख के 1 नंबर बटन हम सब सफा करके देबो, ठीक है। को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। आज यहाँ पर रास्तों का हाल देख लीजिए, आप खुद देख लीजिएगा, आपको दिखाना चाहिए ये रास्ता कितना बदहाल अवस्था पे। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए ड्रेन का क्या अवस्था है। ये देखिए, ये तालाब है यहाँ पे, मतलब हर जगह ऐसा। ये ड्रेनेज सिस्टम कैसे किया हुआ, थोड़ा सा अगर दर्शक को बताइएगा। नहीं, बिल्कुल देख लीजिए, ये ड्रेन ऐसा है, यहाँ साफ सफाई बोल के तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ऊपर से क्या है, जो कचरा है हमको लगता है तो ये तो मतलब कितने सालों से भी नहीं यहाँ पर कोई आ रहा है साफ सफाई के लिए। ये तालाब की तरफ थोड़ा सा आप देखिएगा, ऐसे तालाब यहाँ रामबागान, ऐसे तालाब यहाँ पर 4-5 है रामबागान में, जो कि लोगों के लिए मुख्य मतलब पानी का स्रोत है। इनको यहाँ पर यही पानी से ये लोग यूज करते हैं, मगर आप देख लीजिए क्या अवस्था इन लोगों का। अच्छा, ये ड्रेन का पानी जो है, ये ड्रेन का पानी जो हाइड्रेन में मिलना चाहिए, उसको इस तरह तालाब में गिरा करके और उसको तालाब को और गंदा किया जा रहा है। तालाब का अवस्था देख लीजिए, जो आदमी लोग इस तालाब पे इतने डिपेंडेबल थे, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि 1-2 नहीं 4 से 5 तालाब है रामबागान में, जो मतलब पूरा उसको किसी भी तरह से उसको बंद करने के मतलब ये लोग साजिश रचा जा रहा है, ताकि बंद करके ये लोग उसमें अपना उन्नयन चालू कर दे। अच्छा, भाजपा प्रत्याशी 34 नंबर वार्ड के कैंडिडेट, हाँ। आप जैसे आनंद साव जी, जब आप पहुंचे डोर टू डोर कैमरा, रिस्पांस कैसा हो रहा पब्लिक का? रिस्पॉन्स देखिए, पब्लिक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। पब्लिक का एक ही कहना है कि हमें वो चाहिए जो उन्नयन कर सके, जो काम कर सके, जो सिर्फ मुंह से बोल करके कि हम उन्नयन करते हैं, हम उन्नयन करते हैं। आप देख लीजिए, 5 साल CPM थी,
सीपीएम 5 साल की काउंसलर थी यहाँ पर, वो क्या की है वो तो मतलब दिखाई भी नहीं दी। चलिए ठीक है, कोई कहीं से कोई काम भी तो सोचते करवाती, एक बार आके देखते क्या दुर्दशा में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आज ये कॉर्पोरेशन एरिया ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। उसके ऊपर में ये यूनियन की सरकार, जो टीएमसी की सरकार बोलती है हम यूनियन करते हैं लोगों का, ये क्या यूनियन कर रही है आप हमको बताइए। ये चारों तरफ आप देखिए गंदगी का अंबार भरा हुआ है, लोग यहाँ रास्ता नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए तालाब का ये अवस्था है। इस तरह से लोग इतना त्रस्त है। अगर इस टाइम भी अगर आप लोग नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे बताइए। लोग तो एकदम चाह रहे हैं कि भाई कैसे इस चीज़ से निकला जाए, तो इसीलिए हम लोगों के पास जा रहे हैं कि भाई आप हम लोग जीतने का बाद अगर आप जीतते तो जीतने के बाद पहला एजेंडा अपना वार्ड में क्या रहेगा? बिल्कुल हमारे मोदी जी का पहला एजेंडा ही है स्वच्छता अभियान, साफ सफाई पे ध्यान देना। आज हम लोग ये जो देखिए आज ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सबसे पहले स्वच्छता अभियान के तहत हम इसको जितना भी है इसको सबसे पहले साफ सफाई पे कैसे ध्यान दिया जा सके उसमें देंगे। आज ये जितने भी तालाब इसको फिर से सुधारने के लिए जो भी करना पहला कदम होगा पहले उठाएंगे वो कदम। और ये रास्ता जो सड़कें जो आप देख लीजिए, उधर में आप जाइएगा, यहाँ 2 नज़र से जो देखा जा रहा है, उधर में जाइएगा तो गली कूचा सब बनाया गया है। इधर में इस साइड में राम बागान में देख लीजिए क्या अवस्था है, इस समय कुछ भी नहीं है। यहाँ तो डस्टबिन, यहाँ पर तो डस्टबिन भी नहीं है। डस्टबिन बोल करके हमको नहीं लगता कोई जानते हुए कि यहाँ पर डस्टबिन देखिए जिस तरह से किया गया चारों तरफ, यहाँ लोग दीवार के पास में फेंकना पड़ रहा है, रास्ता में फेंका जा रहा है, कचरा उठाया जा रहा है। मैंने इस तरह का कोई कॉर्पोरेशन एरिया, ये तो म्यूनसिपैलिटी के भी मतलब बदतर कर। आपका नाम परिचय? आनंद कुमार शाह, भाजपा प्रत्याशी 34 नंबर वार्ड। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार सुबह निरसा के 3 अलग अलग जगहों में हुई दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। झारखंड राज्य के धनबाद जिला अंतर्गत निरसा थाना में मंगलवार सुबह गोपीनाथपुर ओसीपी बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से है, जहां अवैध कोयला खदान में चाल धंसने से 9 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल हैं। यह घटना निरसा के गोपीनाथपुर ओपीसी दहीबड़ी और कापासारा में हुई है। धंसे हुए 3 चालों में और भी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। निरसा के एसीडीपीओ पीताम्बर खारेबर ने कहा कि गोपीनाथपुर में ओपन कास्ट माइंस है, जहां चाल धंसने से मजदूरों के दबे होने की सूचना मिली है। इसे देखते हुए ईसीएल के साथ बैठक की गई है। कोशिश किया जा रहा है व्यवस्था, अभी जैसे होता है उसके बाद किया जा रहा है। मशीन वगैरह बुलवाया जा रहा है कोई व्यवस्था? जी पुलिस बल को भेजा जा रहा है, वहां पर मलबा हटाने के बाद सही स्थिति का पता चलेगा। बताया जा रहा है कि 1 घंटे के भीतर अवैध खदान के 3 चाल धंस गए हैं। इलाके के अवैध कोयला कारोबारी की करतूत बताई जा रही है। नाथपुर में जो सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे चाल धंसी है, जिसमें 3 बॉडी तो ऑलरेडी निकाल चुका है यहाँ से, और हम लोगों को जो पता चला करीब 7 आदमी का तो नाम कॉन्फर्म्ड हो गया, और भी हम समझते हैं जो और भी कुछ लोग हैं जो अभी तक नाम पता नहीं चल रहा, तो कम से कम 8-10 लोग और हम समझते जो इसमें मलबे के नीचे दबा मिलेगा यदि हटाया जाए। इसको छोड़कर कापासारा कोलियरी में भी 3 आदमी दब के मर गया, और यहाँ BCCL एरिया 12 में दहीबाड़ी सी पैच है, वहाँ भी 3 लोग दब के सुबह ही मर गए। तो करीब हम समझते हैं जो पूरे निरसा क्षेत्र में करीब 20 लोग आज ही लीगल माइनिंग में दब के मर गए। तो ये अपने आप में हम समझते हैं जो बहुत बड़ी घटना है पूरे देश के पैमाने में, जो इलीगल माइनिंग इतनी ज़ोरों से चल रही है और इतनी कंपटीशन चल रही है कोयला कटिंग को लेकर, कोयला का अवैध तस्करी को लेकर, जो लोगों की जान की कीमत भी आज कुछ नहीं है यहाँ पर। लोगों की जान इस तरीके से प्रत्येक दिन ही लोग मर रहे, और आज तो इतनी बड़ी हादसा हुई जो करीब 20 आदमी मर गए। अभी तक हमने पुलिस प्रशासन DC सारे लोगों को इन्फॉर्म किए, लेकिन अभी तक कहीं से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू। आज ये खबर गोपीनाथपुर में जो कोयला काटने के लिए मतलब जो जनता, महिला या जेंट्स जो भी यहाँ आए हुए हैं, तो अभी क्योंकि हम कल रांची मीटिंग था मेरा, कि सुबह जैसे ही मुझे फ़ोन हुआ कि इस तरह से घटना घटा है, हम तुरंत वहाँ से निकले और जस्ट रांची से ही हम आ रहे हैं।
तो ये तो इतना बड़ा देख के तो हमको आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा इस तरह से जो खुला ये अवैध रूप से जो कोयला यहाँ मतलब, तो ईसीएल ये क्या कर रहा है यहाँ? ईसीएल जो है, ईसीएल वो थोड़ा भनक नहीं है, भनक तो ज़रूर है इनको कि खुले में इस तरह से इतना बड़ा, कोई तो छोटा सा मुहाना है नहीं, इतना बड़ा। हम तो देख के आश्चर्य हमको लगा कि इतना बड़ा मुहाना में जो कोयला का अवैध चोरी हो रहा है। और मतलब कितना भी हुआ है अभी सुनने में मिला कि 10-12 का संख्या में, अभी भी मतलब शायद एक दो शायद निकले और बाकी हम कोयला में दबा हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है और जो दोषी है उस पर हम कार्रवाई का मांग करते हैं, एकदम घोर कार्रवाई का हम मांग करते हैं कि होना चाहिए जिनका भी दोष है। हेमंत सरकार के राज में इस तरह के जो वही तो देखने को मिल रहा है। अभी का जो सरकार, हेमंत जी की सरकार है, उनके समय में अभी कुछ दिन से जो ये हो रहा है, तो ये तो जग जाहिर है क्या हो रहा है। तो जो दोषी है उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई का मांग करते हैं। कारण साधारण जनता का जान लेने का किसी का मतलब अधिकार नहीं है, हक नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो जल्द। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आगामी नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा करते हुए सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है। वहीं तृणमूल भी इस बार जीत का दावा करते हुए चुनाव प्रचार की। सोमवार को 88 नंबर वार्ड तृणमूल प्रार्थी नेहा साव ने भी अपने इलाके तार बंगला टिकियापाड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान कर्मी सभा का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद रहे नारायण चक्रवर्ती एवं रानीगंज के एमएलए तापस बनर्जी। एक नंबर बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा ममता बनर्जी का आदमी हूँ। थैंक यू चाचा, आपके बात से समझ में आ गया कि आप लोग का आशीर्वाद मेरे साथ ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद। आप चालू लेकिन मेरा उम्मीद है आप लोग सब को चाहती है, वो आगे बढ़े या वोट देना चाहती है। ये वोट नया हो गई, ये वोट ममता बनर्जी को दीजिएगा, ये वोट तापस बनर्जी को नहीं, ये वोट ममता बनर्जी को दीजिएगा। उसका आप मौजूद बनाइएगा, उसका जितना मौजूद बनाइए तो और निश्चित करेंगे और काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को नेहा साव ने अपने इलाके 88 नंबर वार्ड कॉलेज पाड़ा के शालडांगा इलाके में भी डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया एवं लोगों की समस्या से अवगत होते हुए उन्होंने सभी की समस्या का हल करने का आश्वासन भी दिया और कहा कि अगर आप मुझे चुनाव में जीत दिलाते हैं तो मैं आपकी हर परेशानी को दूर जरूर करूंगी। इस मौके पर पायल साव और तृणमूल के कई कर्मीगण मुख्य रूप से मौजूद रहे। लेके घूम नहीं सकते, तो बस हम लोग अपना महिला टीम 5-6 जन हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं मानते हुए। देखिए लोग काफ़ी खुश हैं। ममता बनर्जी ने जितना भी काम किया, खासकर लक्ष्मी भंडार को लेके कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो महिलाओं का एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि नहीं हम दीदी को ही वोट देंगे। रिस्पॉन्स काफ़ी इन 20 दिनों में भी पॉजिटिव, बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ, बहुत रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस बार हम लोग डोर टू डोर कर रहे थे तो पब्लिक को समझाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पब्लिक खुद ही बोल रही है कि नहीं हम लोग दीदी के साथ हैं। कुछ लोगों का समस्या भी है जिसको हम लोगों ने सुना है, जीतने के बाद अगर वो लोग का आशीर्वाद देती हैं तो ज़रूर उन लोगों का समस्या का भी समाधान हम लोग करेंगे। जिस तरह दुआरे सरकार हो रहा है, दुआरे राशन दिया जा रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि जीतने के बाद हमारे 88 नंबर वार्ड में दुआरे काउंसिलर भी इन लोगों को, उसकी भी फैसिलिटी इन लोगों को मिले। ऊपर नाम और परिचय। मेरा नाम नेहा साव, 88 नंबर वार्ड की प्रत्याशी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।
रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में वेतन एग्रीमेंट की मांग को लेकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में काम करने वाले कर्मियों का कहना है कि 2020 साल के दिसंबर महीने में हमारे वेतन एग्रीमेंट की समाप्ति हुई थी। उसके बाद 1 साल बीतने के बावजूद भी अभी तक एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया गया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से मांग की है कि जल्द से जल्द हमारा नया वेतन एग्रीमेंट साइन किया जाए। कर्मियों की ओर से कहा गया है कि मात्र 2500-3000 में अस्पताल के कर्मचारी मरीजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में किसी को भी परवाह नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल प्रबंधन इस बार अगर हमारी बात नहीं मानता तो फिर हम आंदोलन पर जाएंगे। দীর্ঘদিন ধরে ম্যানেজমেন্ট আর বাহানা করছে, বেতন চুক্তি হচ্ছে না। মাত্র 2500-3000 টাকায় মারওয়াড়ি হাসপাতালে স্টাফরা কাজ করছে, কিন্তু পেশেন্টদের হচ্ছে হাসপাতালকে বাঁচানোর স্বার্থে সব নিয়ম নীতি মেনে আমরা বসেছিলাম। ম্যানেজমেন্ট কিছুটা ঝুঁকেছে। দুপুর 2টোর সময় তাদের যিনি আসবার কথা তিনি আসবেন, কথা তাদের সাথে হবে। ডিমান্ড একটাই যে টেবিল টক করে এগ্রিমেন্টের ডেট টাইম দিতে হবে। কবে এগ্রিমেন্ট হবে তার যে ডিসকাশন টাইম এবং ডেট, এটা সিআইটিউ ডিমান্ড। সেটা দুপুর 2টোর সময় ওনাদের আসার কথা। আজকে যদি আবার ফুটবল খেলা হয়, ফুটবল খেলা যদি আবার হয়, যদি না আসে লুকোচুরি করে, তাহলে কাল থেকে আমরা লাগাতার আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। এই ছিল বিষয়। বাকি যা স্টাফেরা আছে, যা বাকিরা যদি বলতে চান তারা হচ্ছে যে বলুন। আজকের দাবি, আমাদের মূল যেটা দাবি, আমাদের 2020 ডিসেম্বরে নতুন বেতন চুক্তি শেষ হয়েছে। প্রত্যেকবারে 3 বছর পর নতুন বেতন চুক্তি হয়। 2020 ডিসেম্বরে নতুন বেতন চুক্তি শেষ হয়েছে, 2021 পেরিয়ে গেল, 2022 জানুয়ারি শেষ হতে যাচ্ছে। আমরা চাই অবিলম্বে আমাদের যে নতুন বেতন চুক্তি, অবিলম্বে আলোচনা টেবিলে ম্যানেজমেন্ট বসুক এবং বসে একটা সিদ্ধান্ত নতুন বেতন চুক্তি আমাদের করুক। অগ্নিমূল্যের বাজার আমাদের কারো বেতন 3000, 5000, 4000। তো আমরা এই বেতনে পেট চালাবো কেন, কেমন করে? তো আমরা যে বাজার মূল্য, সে বাজার অনুযায়ী আমাদের বেতন বাড়ায়। ম্যানেজমেন্ট এখনও দুবার বসেছে, আর কোনো কী বলবে না বলে সেটা কিছু বলেনি। এখন আরও বসুক। আজকে যেটা বলেছিলাম যে 2টোর সময় একটা বসার আলোচনা, বসার টাইম দিতে পারে আলোচনা টেবিল। এবার যদি আলোচনায় বসা ভালোই, আর যদি আলোচনা না করতে চাই তাহলে আমাদের যা চেষ্টা যে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আগামী দিনে আমরা সিআইটিউ ঠান্ডা করে বৃহত্তর আন্দোলন যেতে বাধ্য হবো। আমরা চাই যে আমাদের নতুন বেতন চুক্তি, সেই নতুন বেতন চুক্তি অবিলম্বে করতে হবে। যেমন আমার 22 বছর চাকরি করে আমি কাটাকাটি বেতন পাই 5200 টাকা। এবার সেইটা ম্যানেজমেন্ট যে অগ্নিমূল্যের বাজার, সেই অগ্নিমূল্যের বাজারে কতটা কী দেওয়া দরকার সেটা বসুক, বসে পরে আলোচনা করুক। এটা আমার আছে, তোমার অসুবিধা আছে? সব স্টাফের, যত স্টাফে সব স্টাফের 100 পার্মানেন্ট স্টাফ আছে মোটামুটি 65, আর কেজুয়াল আছে গোটা 40, মানে 120 জন টোটাল স্টাফ। তো প্রত্যেকেই চাই যে আমাদের নতুন বেতন চুক্তি হয়। কেন এই 3000 টাকা, 2000 টাকা, 4000 টাকা বেতনে পেট চলবে কী করে? এটাই হলো মেন সমস্যা। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম পরাণ মাঝি, আমি হসপিটাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন সিআইটিউর সাধারণ সম্পাদক। वो लोग जो भी आंदोलन किए वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो प्रबंधक को बताया, प्रबंधन को जानकारी दी कि वो लोग एग्रीमेंट को लेके एक डेट के लिए बोल रहे हैं कि कोई एक फिक्स डेट बताया जाए जिसको लेके वो लोग बैठेंगे। तो प्रबंधनकर्ता जो हैं प्राण से कुछ बात हुई थी, तो वो बोले कि हमारी बात प्राण से हुई, अगर वो हमारे साथ बैठ के बात करें, क्योंकि वो बोले थे हम आपको जवाब देंगे, लेकिन कोई रिप्लाई दिया नहीं। तो जवाब तो उनको देना होगा ना। तो उनको हमने बताया भी कि जो हमारे सर हैं वो बैठना चाहते हैं, आप बैठ के बात करें। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम बैठ के बात करेंगे, फिर हमारा डिसीजन होगा। चाहे वो हमारे फेवर में होगा तो हम आगे सोचेंगे, नहीं तो फिर जैसा करना है करेंगे। देखिए, मैनेजमेंट आजकल नहीं, जो कुछ बातें हुई हैं प्राण से, तो वो एश्योर किया था कि हम इसका रिप्लाई देंगे सर आपको। तो इसी रिप्लाई के वेट में है मैनेजमेंट। लेकिन आज हमने फिर बोला कि आपने कुछ रिप्लाई दिया नहीं, तो आज वो बोले हैं कि आज हम सर अगर आते हैं तो हम सर से बैठ के बात करेंगे, लेकिन वो अकेले में मिलना चाहते हैं। वो ये भी बात हमने बोला कि आप अकेले में सर से बात करो, जैसा कि पहली बार बात की थी आपने। फिर जो होगा आप लोग जैसा उचित होगा वैसा कीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह, असिस्टेंट मैनेजर, मारवाड़ी हॉस्पिटल रानीगंज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি।
স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা ময়দা সুজি বেসন ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। मंगलवार सुबह सियारसोल राजवाड़ी गोलबागान इलाके में वाम छात्र संगठन की ओर से प्राइमरी और हाई स्कूल खोलने की मांग की गई। छात्र संगठन की ओर से कोरोना नियम मानकर प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों को पठन पाठन कराया गया है। विद्यालय के सभी नियमों को मानकर राष्ट्रीय गीत गाकर छात्र संगठन के सदस्य इंग्लिश, बांग्ला, गणित सहित विभिन्न विषयों की पढ़ाई करवाएं। कोरोना की वजह से सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद रखा गया है। हालांकि क्लास 8 से लेकर 12वीं तक के बच्चों की क्लास आगामी 3 फरवरी से शुरू करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई अभी तक शुरू करने की घोषणा नहीं की गई है, जिसकी वजह से कई बच्चे इन 2 सालों में पढ़ाई से महरूम हो चुके हैं। गरीब बच्चों के पास एंड्रॉइड मोबाइल ना होने की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रही।
ऐसे में छात्र संगठन की तरफ से सभी बच्चों को लेकर पढ़ाई शुरू करने का एक नया तरीका ढूंढा गया है। इस कार्यक्रम में एसएफआई के महासचिव श्रीकांतो चैटर्जी, सौरभ दत्ता, आकाश भट्टाचार्य आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। তারপরে মিশ্র কাকু মিলে আজ লকডাউনের বহুদিন ধরে প্রায় 1 বছর ধরে হতে চলেছে এই গরিব বাচ্চাদের নিয়ে বিদ্যাসাগর পাঠশালা ওনারা চালান। আমরাও সাথে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনরা তাদের সহায়তা করি। আজ আমরা যে কর্মসূচি নিয়েছি ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে স্কুলের বাইরে, সেটাই আমাদের চলছে। তারা স্থিতিটা নিয়ে তারা ভীষণভাবে চিন্তিত। যেভাবে মানে স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, স্কুল বন্ধ মানে পড়াশোনা বন্ধ, পড়াশোনা বন্ধ মানে তোমার জানার জায়গাটা সম্পূর্ণ বন্ধ, তোমার বোঝার জায়গাটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এবং এটাই সরকারের কাছে একটা সুযোগ, যখন তুমি কোনো কিছু পড়বে না তার মানে তুমি জানতে পারবে না, আর তুমি না জানলে তুমি সরকারকে বলতেও পারবে না, তুমি তোমার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও পারবে না। যার ফলে যখনই কোনো আমরা আলোর দিক থেকে যখনই ডিটাচ হয়ে যাব, অবশ্যই আমরা সেখানে অন্ধকারের দিকে পৌঁছাবো। সমাজ একটা ভয়ঙ্কর অন্ধকারের দিকে পৌঁছাবে। তো এটা নিয়ে প্রত্যেক বাড়িতে আমরা দেখেছি অভিভাবকরা ভীষণভাবে চিন্তিত, যার কারণে ওনারা আমাদের এই কর্মসূচিতে ভীষণভাবে এগিয়ে এসেছেন। তাদের বাচ্চাদেরকে একদম সকাল সকাল এক সঠিক সময়ে, আমাদের নির্ধারিত সময়ে বাচ্চাদেরকে পাঠিয়েছেন এবং তারা ভীষণভাবে আনন্দিত যে আমরা তাদের পাশে আছি, তাদের সহায়তার জন্য সবসময় আছি। কোন কোন ক্লাস বলতে একদম ছোট্ট বাচ্চা, আমরা কোনো গন্ডি রাখিনি। যেভাবে দেখেছি ক্লাস 8 থেকে মানে স্কুল চালু করার কথা হয়েছে বা স্কুল চালু শুরু হয়েছে, তো যার ফলে বাচ্চাদেরকে হচ্ছে না, আমরা সেরকম কোনো গন্ডি রাখিনি। একদম ছোট্ট বাচ্চা থেকে ক্লাস 10-এর ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আছে। আমার নাম আকাশ ভট্টাচার্য, আমি ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের একজন সদস্য। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सातग्राम इंक्लाइन में आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर वार्ड के तृणमूल प्रत्याशी के समर्थन में केकेएससी की ओर से गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह को फूलों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मीटिंग के दौरान विधायक हरेराम सिंह ने कहा कि जब से राज्य में तृणमूल की सरकार आई है, तब से लोगों की सुविधाओं के लिए कई काम किए गए हैं। ईसीएल में कार्यरत कर्मियों की तनख्वाह 50,000 से भी अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी यह लोग राज्य सरकार की तरफ से दिए जा रहे राशन का लाभ लेते हैं। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए राज्य सरकार क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ की है, जिसमें लाखों रुपए लोन दिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले नगर निगम चुनाव में हर हाल में टीएमसी को जीत दिलानी होगी, तभी एक बार फिर से आसनसोल शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपने वार्ड में अगर टीएमसी प्रत्याशी की जीत होती है तो इस इलाके में जो परेशानी अभी तक है उसे दूर किया जाएगा। मौके पर साधन राय, संजय बैनर्जी, संदीप राय, शेख दिलदार, शिवराम पारिक, तपन मुखर्जी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। वो आपको मिल रहा। आपके बच्चों को पढ़ने के लिए दीदी ने 10 लाख रुपया का लोन किया है। हाई एजुकेशन आपका लड़का इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए दीदी ने कहा कि नहीं, ये लोन सारे बच्चे हमारे हैं, सबके लिए मैं कर रहा हूं। इस तरह जितना योजना है उसमें से कुछ ना कुछ लाभ आप लोगों को भी मिल रहा प्रकट करता हूं। मेरे परिवार के लोग, ये चुनावी सभा है, ममता बनर्जी क्या क्या किया है, ये सारी बातें विस्तृत रूप से हमारे साधन भाई रखते हैं। उसमें ममता बनर्जी का जो योजना चल रहा है, 72 प्रकल्प चल रहा है, उसमें से किसी न किसी प्रकल्प का लाभ हर परिवार को मिला है। ईसीएल के आप एम्प्लॉय हैं, आप 50,000 से ज्यादा वेतन पाते हैं,
उसके बाद भी हमारी सरकार आपको फ्री राशन दे रही है। आप केंद्रीय सरकार के अंदर में है। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। उखड़ा के बी इंस्टीट्यूशन स्कूल मैदान में मंगलवार को 2 दिवसीय आनंद मेला शुरू हो गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उखड़ा ग्राम पंचायत प्रधान रीता घोष और उप प्रधान राजू मुखर्जी ने किया। मेले का आयोजन कई स्वयं सहायता समूहों के संयुक्त सहयोग के द्वारा किया गया। मेले में कुल 23 स्टॉल है। यहाँ महिलाओं की अंग सज्जा, गृह सज्जा, बुटीक, ज्वेलरी, मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ चाय कॉफी से लेकर फूड स्टॉल तक फास्ट फूड का स्टॉल लगाया गया। उद्यमियों की ओर से मौसमी सरकार ने कहा कि स्थानीय महिलाओं को हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों में प्रोत्साहित करने के लिए मेले का आयोजन किया गया है एवं मेला बुधवार तक चलेगा। এখানে গ্রামের যে মেয়েরা আছে যারা নিজেরা বাড়িতে ছোট ছোট কেউ মানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত বা যারা বাড়িতে বসেই ছোটোখাটো ব্যবসাগুলো চালায় তাদেরকে এক জায়গায় আনার মানে একসাথে সমবেত হয়ে এই মেলাটা আমরা করেছি। মানে তাদেরকে মানে কুটির শিল্প হস্তশিল্পকে উৎসাহ দিতে এই মেলা? একদমই তাই। মানে গ্রামে যেসব মেয়েরা আছে যাদের মধ্যে কিছু করার ইচ্ছা আছে অথচ কিছু করে উঠতে পারে না, সেই সব মেয়েদেরকে নিয়ে আমরা একটা কিছু করার চেষ্টা করেছি। এখানে কি কি ধরনের স্টল রয়েছে? এখানে আপনি জুয়েলারি পাবেন, বিভিন্ন বাড়ি সাজাবার জিনিস পাবেন, জামা কাপড় পাবেন, শীত বস্ত্র পাবেন, খাদ্যদ্রব্য পাবেন, বিভিন্ন ধরনের সম্ভার, ব্যাগ, বিভিন্ন জিনিসের সম্ভার নিয়ে আমরা এখানে হাজির হয়েছি। কদিন চলবে মেলা? 2 দিন ধরে মেলাটা চলবে। আপনার নাম? আমার নাম মৌসুমী সরকার। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।